اس کے ساتھ آپ کا ایک رشتہ بنا. یہ ایک فرنٹ ایلیمنٹ ہے جس کو میں بھی دن میں فوکس کرتا ہوں, آپ بھی کرتے ہیں. ہم کوئی بھی چیزیں جو نا دیکھ رہے ہوتے ہیں, کر رہے ہوتے ہیں, پھر ہم کہتے ہیں اس کی وجہ سے, اس کی وساطت سے, اس رشتے سے اگلے نے ہمارا یہ کام کر دیا, بھلے اندر کچھ اور ہی معاملہ ہو, یہ ہمیں نہیں پتہ ہے, یہ اس کو پتہ ہے. ہم یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ یہ کیا کس نے, بندے نے. کروانے والا کون تھا, اس کے دل کے اندر ڈالنے والا کون تھا. دیکھیں جی, بڑی کلیئر آپ کو بتاؤں, آج کل کے زمانے میں کوئی شخص اپنا پسینہ نہیں کسی کو دیتا, وہ بھی سنبھال کے رکھتا ہے. کیوں؟ رشتہ ہی کوئی نہیں ہے. کہتے ہیں جی خون کا سفید ہو جانا, کافی ساری چیزیں نا اس طرح ملی ہوئی. لیکن در حقیقت جو رب کا بندے کے ساتھ, بندے کا رب کے ساتھ جو رشتہ ہے, اس کے اندر بہتری ہی آتی جاتی ہے اس وقت جب انسان اس مقام تک آ جاتا ہے کہ اے میرے پروردگار, اے میرے اللہ, تیرا میرا رشتہ جو ہے یہ قائم رہنا چاہیے, اس کے اندر کوئی ایرر نہ آئے. جیسے بڑا کلیئرٹی کے ساتھ بتایا گیا کہ جی والدین جو ہیں یہ جیسے بھی, جس بھی کیفیت, جس بھی معاملے کے اندر, بات ذرا سمجھیے گا, وہ بات کریں تو اف تک نہ کہو. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی مینشن کیا گیا کہ اگر ان دونوں میں سے کوئی تمہیں کسی ایسی راہ پر جو اس کی راہ سے ہٹ کرو ڈال دے تو وہاں ڈینائی کرنا. یہ بھی ذرا ساتھ ذہن میں رکھیے گا. یہ کمپلیکیٹڈ بات ہے, یہ سمجھنے والی بات ہے, یہ فہم والی بات ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اس کے ساتھ جو ایک رشتہ ہے اس کی مضبوطی کی علامت ہے, اس کی مضبوطی کا اشارہ وہ کرتا ہے کہ بھی جب تم میرے ساتھ رشتہ رکھو گے تمام رشتے تمہارے. ایک ہوتا ہے کسب کا رشتہ بنانا, ایک ہوتا ہے رب کی طرف سے رشتے کا بن جانا. ان دونوں کے اندر بڑی چیزیں ہیں. کسب کے رشتے کے اندر بڑا خرچہ کرنا پڑتا ہے. سب سے پہلے تحفے تحائف دینے پڑتے ہیں, اس کے بعد ان کے مزاج اور ان کی طبیعت کے مطابق ان کے ساتھ نشستیں کرنی پڑتی ہیں. اب یہ کیا ہے؟ یہ کسب کا رشتہ بنایا جا رہا ہے, ایفرٹ کر کے تعلقات بنائے جا رہے ہیں. اور ایک قدرتی طور پر رب کی ذات رشتے بنا دیتی ہے جن کو ہم کوئی نام نہیں دے سکتے. بلڈ ریلیشن سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں کہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں پریشانی کی حالت میں, تکلیف کی حالت میں, اور یہی دعا کر ہوتے ہیں, اے پروردگار اب تو رستہ دکھا, سمجھ نہیں آ رہی کہاں جائیں گے, کس طریقے سے یہ چیزیں ہوں گی. اس وقت وہ رشتے کہاں سے بن کر آتے ہیں؟ فرشتوں کے روپ میں, غیبی مدد کے روپ میں, یا رب بھیج دیتا ہے ان بندوں کو اس مقام پر کہ اے میرے بندو جاؤ, میرا فلاں بندہ مجھے پکار رہا ہے, میرا فلاں بندہ اس وقت اس حالت میں, اس کو نکالو اس کی کرائسس سے. وہ تعلق پرانا ہی ہوتا ہے لیکن وہ اس وقت بڑا پرجوش ہو کر بڑے ولولے کے ساتھ آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. جی حکم کریں جناب, کیا خدمت کر سکتا ہوں, یہ کر سکتی ہوں. یہ رب کروا رہا ہوتا ہے اللہ کے بندو, یہ سمجھنا ہے. اس کے بعد پھر وہ جو ٹائم گزر جاتا ہے, وہ سرکمسٹانسز ختم ہو جاتے ہیں, حالات رخ بدل لیتے ہیں, پھر ہم بھول جاتے ہیں ان افراد کو, پھر ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں ان لوگوں کو اپنی زندگیوں سے. پھر کبھی کوئی یاد کرا دے, وہ یاد ہے اس دور میں کیا ہوا تھا, وہ پھر اس وقت پھر ایک اندر سے نا ایک ولولہ سا جوش و جذبے کا وہ دوبارہ بیدار ہوتا ہے. پھر جناب اس کو سرچ کیا جاتا ہے, کہیں وہ فیس بک اٹھا لیں, کہیں جناب کو نمبر اٹھا لیں, کہیں ادھر سے نمبر لے لیا, کہیں ادھر سے, وہ کرتے کرتے پہنچ جاتے ہیں آپ, یہ نہیں کہ نہیں. پھر سلام دعا کرتے ہیں, پھر وہ ایک دفعہ شکریہ ادا کرتے ہیں اس کا کہ اس وقت جو آپ نے میرے ساتھ کام کیا میں اس کا احسان نہیں بھلا سکتا. حالانکہ 2-3 سال سے بلا کر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. یہ کیا ہے؟ یہ ہیومن ہے, انسان ہے. یہ انسان کے کئی رنگ ہیں, انسان کے کئی موسم ہیں. ویسے تو 4 سیزن ہوتے ہیں نا جی, یہاں پتہ نہیں کتنی سیزنز ہیں انسان. 24 گھنٹے کے اندر 24 سیزن ہیں انسان کے. توجہ سے دیکھیے گا اپنی ذات کو. بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہے کوئی چیز,
उतनी नफरत होना शुरू हो जाती है उस चीज़ से। बहुत नफरत या बहुत दिल से मना कर रहे होते हैं उस चीज़ को कि नहीं, ये नहीं है चीज़, अच्छी नहीं है चीज़, उतने ही करीब उसको कर लेते हैं। क्यों? नेचर, फितरत है। फितरतें भी तो मुख्तलिफ इक़साम की हैं। को पॉजिटिव फितरत की तरफ निकल जाता है, वो नेगेटिव फितरत की तरफ चला जाता है। वो पॉजिटिव फितरत का फार्मूला ये है कि एक पॉजिटिव फितरत को जब आप फॉलो करना शुरू करते हैं, दूसरी मुंतज़िर होती है कि भाई इधर भी आ जाए, तीसरी उसके बाद मुंतज़िर है, चौथी उसके बाद मुंतज़िर है। ये पूरी एक चैन है जो खुलती जाती है। नेगेटिव जो फितरतें हैं बहुत सारी हैं इंसानों के अंदर, इसकी भी एक लिस्ट बनने वाली है जल्दी, प्रोग्राम में करूँगा इंशाल्लाह, पॉजिटिव फितरत का और नेगेटिव फितरत। उसमें भी ये होता है कि एक दफ़ा आपको लत पड़ जाए, चस पड़ जाए, वो फिर बंदा निकल जाता है। यहाँ पे हज़रत अली करमुल्लाह वजह, उनका बड़ा खूबसूरत कौल है कि जो शराब का नशा होता है, इस नशे से भी ज़्यादा ख़तरनाक गफलत जिसको कहते हैं। और एक और लफ्ज़ था, इस वक्त डिलीट हो गया, माज़रत चाहूँगा। जब उसके अंदर इंसान, उस लत के अंदर इंसान पड़ जाता है ना, तो वो देर बाद उसको होश आता है, और होश उस वक्त आता है जब बचता कुछ नहीं है उसके पास। वो कहते हैं ना कि होश आई तो कुछ भी नहीं था। तो अभी बहुत वक्त है, बहुत टाइम है, खोलना है अपने आप को, बेदार करना है, रिश्ते को समझना है अपने। हमारा आपका एक ताल्लुक किस रिश्ते से है, कौन है इसकी बुनियाद, इसका खालिक कौन है। जब उस रिश्ते के कनेक्शन को समझ लेंगे ना, फिर तमाम चीज़ें मुबर्रा हो जाएंगी, इधर से इधर से। तस्लीम करना है, लेकिन तस्लीम इंसान उसी वक्त करता है जब उसके सामने एक हिस्ट्री आती है। हिस्ट्री के लिए रवायात है, हिस्ट्री के लिए किताब है, हिस्ट्री के लिए आपकी अपनी ज़िंदगी है। अपनी ज़िंदगी में जाएं, अपनी ज़िंदगी को झांकें, अपनी ज़िंदगी को परखें, अपनी ज़िंदगी को समझें और सोचिएगा आराम से बैठकर जब फुर्सत हो। आजकल तो बिज़ी इतने हैं ना, बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं जी अफराद, पूछें कुछ ना। वो साइकिल पे जा रहा है वो भी मोबाइल कर रहा है, वो कुछ स्वीपर अगर सफाई कर रहा है वो उसने भी मोबाइल लगाया हुआ साथ। क्यों लगे हुए हैं? जो एक तरीक़ेकार से काम करवाया जा रहा है, हटाया जा रहा है हमें अपने ट्रैक से, उस ट्रैक के अंदर लगे हुए। बिज़ी इतना कर दिया है, उलझा इतना दिया है हमारी ज़िंदगियों को। किस रिश्ते से किसी के यहाँ जाएं, किस रिश्ते से किसी के पास जाएं। मैं आपकी तरफ आता हूँ, आपके पास टाइम नहीं है, आप मेरी तरफ आते हैं, मैं भी सोचता हूँ मेरे अपने 3600 काम हैं, मेरे अपने इतने सारे इशू हैं, वो रुके हुए हैं। अगर कोई आ जाएगा 4 घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, मैं किस तरीके से उसको मैनेज करूँगा? क्यों इतना उलझा दिया गया? पहले ये चीज़ें नहीं होती थी, पहले मुंतज़िर होते थे, मिन्नतें की जाती थी, जनाब चाय तो पी लें, अच्छा चले एक आधा घंटा बैठ ही जाएं। वो क्या था, किस रिश्ते से था? वो अंदर की आवाज़ का रिश्ता था, असल इंसानियत का रिश्ता था। तो यहाँ पे जो कसब के रिश्ते हैं ना, ये लॉन्ग लास्टिंग रिलेशन नहीं होता, ये टेम्पररी होते हैं। 6 माह मैंने रिश्ता बना लिया आपके साथ, 8 महीने बना लिए, 1 साल बना लिया। रिश्ता वो जो दिल से बनता है, इसमें गरज ना हो, कोई मकसद ना हो, कोई ताल्लुक़ और वास्ता ना हो। ये सोचनी ये चीज़ें हमें, ये समझनी पड़ेंगी हमें चीज़ें। जब हम इन तमाम चीज़ों को समझना शुरू करेंगे, देखना शुरू करेंगे, फिर खुदा शायद हमें इल्म होगा कि हम आज बोलते हैं, बैठते हैं, खाते हैं किसके रिश्ते से। ये जब किस रिश्ते से या किसके रिश्ते का क्वेश्चन मार्क का आंसर आना शुरू हो जाएगा, फिर जो इर्द गिर्द अफराद हैं इनके रिश्ते का स्टेटस कम से कम समझ आ जाएगा हमें, ब्लड रिलेशन से हटकर पता चल जाता है आपको। समझदार लोग हैं, दानिश्वर लोग हैं कि कौन सा बंदा किस रिश्ते से आया, किस टोन में आया, क्या तकाजा है उसका, चाहता क्या है, अंदर उसके क्या है।
वो कौन बताता है? वो फेस बताता है इंसान का, चेहरा जिसको कहते हैं। चेहरा एक ऐसी किताब की तरह है, एक ऐसी कॉपी की तरह है जिसके अंदर तमाम नक्शे मौजूद होते हैं। खुशी का दौर है आपका, चेहरा आपका वो सिग्नल देना शुरू कर देगा कि जी खुश है बंदा। खुदा न खास्ता बदहाली का दौर है, चेहरा आपके सिग्नल्स देना शुरू कर। लाख आप छुपाएं, लाख आप कलफ वाले सूट पहन कर जाएं, लाख आप अपने आप को मेंटेन करके रहें, ये छुपने नहीं देता, ये पिक्चर सामने रख देता। कोई भी किसी किस्म का दर्द हो, दुख हो, उसका पहला इम्पैक्ट ही चेहरे पर होता है इंसान। कहते जी हवाइयाँ उड़ जाना, ये भी सुनी होगी बात आप। क्यों? ये बात है सारी। इधर का जो टेम्परामेंट है ना, इधर की जो साइकिल है ना, ये हम लोगों ने ख़राब कर ली है। वो डिमर होता है ना जी, उसमें 5 नंबर होते हैं, वो हमने 5 के बाद भी कोशिश की इसको घुमाने की, वो घुमा नहीं, वो ख़राब हो गया। अब हमें अंदाज़ा ही नहीं है कि किस स्पीड से हम चल रहे हैं, कहाँ पर हमने आहिस्ता होना है नहीं अंदाज़ा, कहाँ पर हमने ठहरना है नहीं अंदाज़ा, कहाँ पर हमने रुकना है नहीं अंदाज़ा। क्यों? जो बेस है रिश्ते की वो हमें नहीं समझ आ रही है आजकल। मैं खुद बाज़ दफ़ा बड़ा परेशान हो जाता हूँ। यकीन करें, अब कोई शख्स मिलने आया, कोई दिल से आया मिलने, एकदम घंटी बजती है, ये किस रिश्ते से आया यहाँ पे? फिर मैं कहता हूँ नहीं इंसानियत के रिश्ते से आया। फिर मैं कहता हूँ अच्छा इंसानियत के रिश्ते से अगर ये आया तो क्या मैं भी इंसानियत के रिश्ते से इसको मिल रहा हूँ? नहीं, मैं सबसे पहले उसको एग्जामिन करता हूँ, उसकी चप्पल को देखता हूँ, उसके कपड़े को देखता हूँ, फिर उसने कोई घड़ी पहनी है उसको देखता हूँ, फिर मैं बाहर झांक कर देखता हूँ इस रिश्ते से कि ये कौन सी गाड़ी के अंदर आया, छोटी गाड़ी के अंदर आया, बाइक पर आया या बड़ी गाड़ी के अंदर आया, किस रिश्ते से। फिर उसके बाद मैं उसके साथ गुफ्तगू करता हूँ, वो उसके मिजाज के मुताबिक गुफ्तगू करता हूँ, किस रिश्ते से। ये अंदर का इंसान है, नेगेटिव इंसान है। रखेंगे बात को जारी। कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कादरी साहब कैसे हैं आप? जी अल्लाह ताला का बड़ा करम है मोहतरम, आपकी दुआएं, आप खैरियत से? सर शुक्र है रब का सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आज आपका मौजू है किस रिश्ते से। सर ये सर जी एक ऐसी चीज है, एक ऐसी पहेली है जिसको पहले समझना बहुत जरूरी है। ठीक। और ये एक ऐसा सवाल है जो मेरे ख्याल से हर इंसान को किसी से करने से पहले खुद अपने आप से करना चाहिए। सर मसलन अगर मैं किसी के साथ किसी भी वजह से जी कुछ कर रहा हूँ, जी भलाई कर रहा हूँ या खुदा न खास्ता बुराई कर रहा हूँ, जी, तो मुझे ये पहले खुद सोचना पड़ेगा कि ये किस वजह से या किस रिश्ते की बुनियाद से मैं ये कुछ कर रहा हूँ। सर तो इसकी नेगेटिव चीजें, पॉजिटिव चीजें वो तो फिर खुलेंगी साथ साथ ही, खुलेंगी जी बिल्कुल। लेकिन पहले खुद से ही चीज जब शुरू होगी तो फिर दूसरों की तरफ ध्यान जाएगा। जैसे आप फरमा रहे हैं, कोई किसी की हेल्प करता है जी, कोई किसी लेडीज को सपोर्ट करता है, तो देखने वाले ये सोचते हैं, उनके जहनों में ये सवाल पैदा होता है जी, होता कि है ये किस रिश्ते से ये किया जा रहा है। जी सर। तो ये बहुत वसी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। सर बहरहाल मेन चीज ये है कि इस्लाह का मौजू है, इस्लाह का मकसद है जी इस प्रोग्राम का। तो उस हवाले से ही अर्ज करूंगा, जब इस्लाह की तरफ हम जाएं तो सबसे पहले अपने आप से स्टार्ट करें, ठीक हो गया, तो फिर इंशाल्लाह दूसरों की तरफ जाएं तो सर। फिर बहुत अच्छे उसके नताइज निकलते हैं। इंशाल्लाह जी। तो बाकी रही बात किस रिश्ते से, ये हमें सोचना चाहिए बहुत सारी चीजों को जी कि आज अगर हम दुनिया में हैं तो किस रिश्ते से हैं, सर। और इस दुनिया में जिस तरह जी रहे हैं ये किस रिश्ते से जी रहे हैं, ठीक हो गया जी, किस किस के साथ किस रिश्ते से हमें जीना चाहिए, ठीक हो गया मिलना चाहिए, जी और रख रखाव के लिए क्या करना चाहिए। सर। बहुत सारी चीजें आती हैं इसमें। सर तो फिर इसी तरह हमें ये भी देखना है कि हम मुसलमान हैं तो किस रिश्ते से हैं, हाँ इंसान हैं तो किस रिश्ते से हैं, जी,
پھر اس کے بعد جو آگے دنیا کے بعد والی آگے زندگی ہے، جی قبر و حشر کا معاملہ ہے، سر، اس میں بھی پھر یہ رشتوں والے معاملے